हाजरीन, स्कूल निर्देशक, उप निर्देशक, प्रिंसीपल, वाइस प्रिंसीपल ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫॉर ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤ ਮੈਂਟਰ ਟਾਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਮਿਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੈਬ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੱਚੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੰਜੂ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੈਟ, ਸੀਟੈਟ ਆਦਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਮੈਮ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੈਂਟਰ ਟਾਕ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ IISc ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਮ ਦਾ ਇਹ ਬੇਕਮਾਲ ਸਫ਼ਰ। ਮੈਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕਮਾਲ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸੀ ਤੇ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਡੁੱਲੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ ਇਹੋ ਸਿੱਟੇ ਤੇ, ਲੈ ਲੈ ਕਾਲੀ ਲੋਈ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦਾਗ ਚਿੱਟੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੋਸਤਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਹੀ, ਉੱਠ ਫਿਰ ਚੱਲ ਦੋਸਤਾ, ਉੱਠ ਫਿਰ ਚੱਲ ਦੋਸਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। Respected and notable luminaries of the day, a very good afternoon to all of you. Thank you so much Payal ma'am for your warm words, and I would like to thank all my senior fellows for your guidance, motivation and support, and very special thanks to Mr. Ravi Kumar for creating this Mentors Talk platform. जैसे कि अंचल मैम ने कहा था, Mentors Talk mean ocean of opportunities. Yes, तो हम सबके लिए Mentors Talk एक अपॉर्चुनिटीज़ का ओशियन है। तो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट मेंटर्स टॉक। मेंटर्स टॉक हमने 2023 में स्टार्ट किया था, आप सबको पता है। तब हम इवनिंग एवरी वीकेंड 5 o'clock इवनिंग सेशंस लेते थे जूम प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हमारे बहुत सारी वर्कशॉप जैसे कि निपुण भारत, वैदिक मैथ, सर्कल टाइम, पंचाड़ी अप्रोच, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अनडिफाइंड ड्यूटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी बहुत सारी वर्कशॉप्स हमने बहुत अच्छे से कंडक्ट की। देन हमने मई में स्विच ऑन किया ऑफलाइन मोड में, जहाँ पर हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बहुत ही बखूबी कंप्लीट किया, कंप्लीट सीरीज़ को। एंड अब हमारी जो मेंटर्स टॉक की सीरीज़ है वो और भी हाई स्पिरिट और एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ रही है। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द IIScn फॉर कंप्लीटिंग 1K सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। यस, आज टुडेज टॉपिक इज जेंडर सेंसिटाइजेशन। ये वर्ड्स आपने बहुत बार सुने होंगे। जेंडर मीन्स सोशल एंड कल्चरल ड्यूटीज एंड सोशल एंड कल्चरल रोल्स के बिहाफ पे जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है मेल एंड फीमेल को। एंड सेंसिटाइजेशन मीन महसूस करना, किसी चीज को लेके अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, सीखना, कुछ सिखाना, उसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। So gender sensitization is a process of creating awareness and creating a gender neutral environment among teachers, parents, students and society. So our today's topic is gender sensitization.
So question is why we are doing today this session? तो एज अ रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद इन चीज़ों के लिए अवेयर हों ताकि हम पेरेंट्स और अपने स्टूडेंट्स को सोसाइटी को आगे अवेयर कर पाए. So now I initiate my presentation, but before it I have one question. What is gender and what is sex? Which word is correct to use? ये दोनों वर्ड्स आपने बहुत बार बहुत सारी जगह पर सुने हैं, बट what is the difference? हमें कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करना है? These two words are very interlinked, very closely linked एक दूसरे के साथ. तो according to World Health Organization, sex mean a biological and physiological characteristics of a man and a woman. But gender mean social and cultural behalf, जो हमारी एक्टिविटी बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी ने हमारे लिए अप्रोप्रिएट कर दिया है कि एज अ मेल ये होना चाहिए और एज अ फीमेल ये होना चाहिए, दैट इज अ जेंडर. सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड एट द बर्थ. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बर्थ के टाइम पर ही निर्धारित हो जाता है. बट जेंडर इज अ सोशली लर्न किया जाता है हमें इसको लिए. जेंडर इज अ एक्वायर्ड आइडेंटिटीज. जो सेक्स है वो थ्रू आउट द हिस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं. मेल एंड फीमेल में डिफरेंसेस हमारी हिस्ट्री से चलते आ रहे हैं. बट जो जेंडर है वो क्या है कि अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग कल्चर्स में जो जेंडर रोल्स हैं, जेंडर बिहेवियर्स हैं, वो डिफर करते हैं मेल एंड फीमेल के लिए. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सेक्स में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि फीमेल्स मेंस्ट्रुएट वाइल मेल्स नॉट. जब हम ये कहते हैं कि मेन्स जनरली हैव मोर मैसिव बोन्स देन फीमेल्स. एंड अगर जेंडर की बात करें तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी कंट्रीज़ में यही माना जाता है कि फीमेल्स का काम क्या है, घर के काम करना, बच्चे संभालना, उनकी टेक केयर करना. तो दीज टू आर वेरी प्रोमिनेंट वर्ड्स एंड ये बहुत इन सम केसेस हम यूज करते हैं वर्ड जेंडर एंड इन सम केसेस वी यूज वर्ड सेक्स. सो टुडेज एजेंडाज आर चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर बायसनेस, promote equality and equity, creating inclusive and gender neutral environment. ये टीचर्स जैसे कि सोसाइटी में टीचर्स को एक रोल मॉडल माना जाता है, तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारा कि हम इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स को और सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोड्यूस करें. सो लेट्स बिगिन. आर यू रेडी? यस मैम. यस. सो फर्स्ट वन इज जेंडर स्टीरियोटाइप. अभी मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूंगी तो आपने उन वर्ड्स को सुन के अपने माइंड में एक इमेज बनानी है मेल की या फीमेल की. ठीक है, वर्ड सुन के जो फर्स्ट पिक्चर आपके माइंड में आई. सो फर्स्ट वर्ड इज ब्रेव. बोलना नहीं है, बस आप अपने माइंड में ये पिक्चर बनाइए. फर्स्ट इज ब्रेव, सेकंड ब्यूटीफुल, एडवेंचरस, ड्राइवर, लिपस्टिक, केयरिंग, कुकिंग, नर्चरिंग, नर्स, फायरमैन. यस. तो ये वर्ड सुन के जो 99% लोग हैं उनके माइंड में एक मेल की पिक्चर आई होगी इन वर्ड्स के लिए, ब्रेव, एडवेंचरस, ड्राइवर. और एक फीमेल की पिक्चर आई होगी ये वर्ड सुन के, ब्यूटीफुल, नर्चरिंग, कुकिंग, इन सब वर्ड्स के लिए. सो दिस इज द स्टीरियोटाइप दैट अ फिक्स्ड इमेज वी हैव. हमने जो बचपन से सीखा है उसको लेके हमने जो फिक्स्ड इमेज बनाई हुई है वुमेन और मैन को लेके, जो हमारी अजम्पशंस है, जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है. ओके. Now the dimensions of gender stereotype are, first one is personality trait. Yes, हमारी पर्सनैलिटी को लेके बहुत सारी assumptions हैं. जैसे कि ये माना जाता है कि फीमेल्स आर accommodated and emotional, while men's are self confident and aggressive. ये कुछ हमारी पर्सनैलिटी को लेके स्टीरियोटाइप्स हैं. सेकेंड इज डोमेस्टिक बिहेवियर. यस, ये बहुत बड़ी स्टीरियोटाइप है हमारी इंडियन सोसाइटी की कि जो मेल्स हैं दे आर द फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ द फैमिली. उन्हें सभी मटीरियलिस्टिक नीड्स कंप्लीट करनी है फैमिली की. और फीमेल के लिए माना जाता है कि दे आर फॉर कुकिंग, केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन. एंड हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो यही था कि फीमेल्स आर टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन. उनका काम यही था, घर तक ही सीमित था. द थर्ड डायमेंशन इज ऑक्यूपेशनल. ऑक्यूपेशन के बिहाफ पे बहुत सारी स्टीरियोटाइप है. जैसे मैंने अभी बोला नर्स, तो आप सबके माइंड में क्या आया? फीमेल. अगर हम बोले ड्राइवर तो क्या आएगा? मेल. क्यों? क्या पायलट्स नहीं है फीमेल? लेकिन हमने बचपन से सुना है, यही चीजें देखी हैं कि जो ड्राइवर है वो मेल है, या नर्स एक वर्ड ही ऐसा जो यही झलकाता है कि ये एक फीमेल है. नेक्स्ट वन इज फिजिकल अपीयरेंस. यस, हमारी सोसाइटी ये हमसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर हम फीमेल हैं तो हमें क्या होना है? थिन होना है और एक ग्रेसफुल बॉडी स्ट्रक्चर होनी चाहिए. और अगर हम मैन हैं तो हमें टॉल होना है और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? मस्कुलर होनी चाहिए. ऐसे ही हमसे अज्यूम किया जाता है कि हमें ड्रेसअप कैसे होना है, खुद को ग्रूम अप कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी.
So the gender stereotypes are beliefs about the characteristics, roles, behaviors of men and female. The next one is gender biasness. Before discussing gender biasness, let's watch one video. मेरे भाई का बॉय न्यू बाइक कैसी है? इट्स नाइस, सिंगल सीटर है। तो अब तुम घर तक लिफ्ट किससे लोगी? इमेज है 1000 सीसी है, होगा ही। देखो कैसा है? 4 सेकेंड्स 0 to 100। सुन, जब दो बाइकर्स आपस में बात करते हैं तो बीच में बोला नहीं करते हैं। 2 का पता नहीं, पर 1 तो है। यस, तो क्या देखा हमने इस वीडियो में? एक बाइक और हेलमेट को देखती उस पर्सन की पहले से assumption है, उसने एक्सपेक्ट यही किया हुआ है कि ये बाइक उस मेल की होगी। क्या फीमेल्स बाइक राइड नहीं कर सकती? लेकिन जो सोसाइटी ने शुरू से ही, बचपन से ही हमें सिखाया है, उसी के बिहाफ पे हम अपने डिसीजंस लेते हैं। सो जेंडर बायसनेस इज unfair treatment or preferences for one gender over another based on preconceived notions and stereotypes। जो हमने शुरू से stereotypes सीखी है, उसके बिहाफ पे हम unfair treatment करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके। सो dimensions are, first one is gender specific professions। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ प्रोफेशंस जेंडर स्पेसिफिक कर दिए गए। अगर टीचर्स की बात ही करें तो आज इंडियन सोसाइटी में 80 to 85% टीचर्स क्या हैं? फीमेल। तो ये एक अभी जेंडर स्पेसिफिक प्रोफेशन बनता जा रहा है। जैसे अभी हम ड्राइवर, पायलट्स, इन सब की बात कर रहे थे, तो वो क्या है? बायसनेस। अगर हम वर्ड बोल रहे हैं फायरमैन, तो अब इस वर्ड में मैन ही लग गया, तो मतलब ये किसको शो कर रहा है? एक मेल स्टीरियोटाइपिंग को शो कर रहा है। तो उसकी जगह हम जेंडर न्यूट्रल वर्ड जैसे कि फायर फाइटर, जो फायर पर्सन जैसी चीजें यूज कर सकती हैं। सेकेंड इज मैन नेवर क्राई। यस, ये हम सभी शुरू से ही बॉयज को यही सिखाते हैं कि रोना नहीं है। बॉय रो रहे हैं तो एज अ टीचर हम क्या कहते हैं? क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो? आप तो अच्छे बॉय हो, ब्रेव बॉय हो, गुड बॉय हो। ये सारी नोशन जो हैं हमें हमारी सोसाइटी से निकालनी है। क्या मैंस में इमोशंस नहीं है? लेकिन हमारी सोसाइटी ने ये शुरू से स्टीरियोटाइपिंग बनाई हुई है कि मैंस रोते नहीं है, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज हाउस सिंड्रोम। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बॉय है उसको बचपन से यही सिखाया जाता है कि करियर फोकस बनो, आपको अपनी फैमिली का क्या बनना है? फाइनेंशियल सपोर्टर बनना है, फैमिली की मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफिल करना है। और इन सबको दिखाते हुए हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी नोशंस भी हैं, जैसे कि ये बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, बोला जाता है बेचारी लड़की, लाचार महिला, अबला नारी। ऐसी बहुत सारी नोशंस हैं जो एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऊपर डोमिनेट करती हैं। तो हमें इन नोशंस को रिमूव करना है हमारी सोसाइटी से। यस, द नेक्स्ट वन इज जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्वालिटी मीन्स एम्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना है हर एक इंडिविजुअल को, रेदर ही इज बॉय और शी इज गर्ल। एंड इक्विटी मीन एम फॉर फेयरनेस बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग इंडिविजुअल नीड्स और बैरियर। इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए हमें उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, देखो इक्विटी में क्या दिखाया गया है कि 3 पर्सन्स हैं और तीनों की हाइट में डिफरेंस है। तो इक्वालिटी तो कहती है कि तीनों को एक एक ब्लॉक दे दो पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने के लिए। लेकिन आप इक्विटी में देख रहे हो कि जो फर्स्ट पर्सन जिसकी हाइट पहले से लंबी है उसको अगर बॉक्स ना भी देंगे, और थर्ड पर्सन जिसकी हाइट उन सब में से छोटी है उसको अगर 2 बॉक्सेस दे देंगे, तो वो तीनों एक पर्टिकुलर हाइट पर आ जाएंगे। सो दिस इज द इक्विटी कि हमें मेल और फीमेल नहीं देखना, हमें इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग हमें उनकी क्या करनी है? नीड्स के अकॉर्डिंग हमें उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। तो आगे एग्जांपल डिस्कस करने से पहले लेट्स वॉच वन मोर वीडियो। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे स्कूल ने इक्वालिटी करते हुए बॉयज एंड गर्ल्स की एक साथ गेम्स करवाई। लेकिन एंड पे आप देखोगे कि इस बॉय का फादर एक ऐसी बात कहता है जो बच्चे का लाइफ टाइम के लिए एक माइंड सेट कर देगा। प्लीज प्लीज On your marks, get set, go! Akash, faster, Akash! Faster, faster! Akash, faster! Come on, Akash! Faster, faster! Yes! Go, 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 go! पहुंच गया बस!
क्वेश्चन रेज हो गया कि मैं लड़की से हार गया, मुझे आगे से ये नहीं करना है। तो ये स्टीरियोटाइप है जो बचपन से ही हमें सिखा दी जाती है। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो इक्वालिटी, जैसे कि अभी एक वर्क प्लेस है जहाँ पर हम सभी मेल एंड फीमेल एक साथ काम कर रहे हैं, सभी के लिए सपोज 10 लीव्स असाइन है सभी के लिए। तो जैसे अभी हमने बात की कि फीमेल्स मेंस्ट्रुएट करते हैं तो उस टाइम पे उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी वीकनेस फेस करनी पड़ती है। तो क्या इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए अगर मेल्स को 10 लीव असाइन है तो क्या फीमेल्स को 15 लीव असाइन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, यस। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि फीमेल जो हैं बच्चों की टेक केयर करती हैं, उन्हें संभालती हैं, तो वो करेंगी क्योंकि उन्हें मैटरनिटी लीव मिल रही है। अगर वही सेम लीव मेल्स को मिलेगी तो क्या वो नहीं करेंगे? उनका भी दिल करता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो ये है इक्वालिटी कि हमें एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पे उनके लिए उनकी नीड्स को देखते हुए उस प्रोसेस को करना है। तो इक्विटी इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन इक्वालिटी। Yes, there is one more video. रोहन, हाँ ये ब्रेकआउट रूम कैसे करूं? भूल गई थी। अकाउंट सेटिंग और फिर मीटिंग टैब में जाओ। जैसे शुरू भूल गई हूं फिर से। क्यों? आप भिंडी में क्या प्रॉब्लम है? मेरी व्हाइट शर्ट का है। Mama, I don't like bindi. I want something nice to eat. फेंक दो फिर। पापा आपने कल ही तो व्हाइट शर्ट धोने के लिए दिया था। मेरे को व्हाइट शर्ट पहनी थी। मम्मा, आपने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और पिया तू ना एक वीकली मेनू बना, सबके लिए इजी हो जाएगा। घर सबका है, जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए ना। तो मैंने व्हाइट शर्ट भी पहनी थी। और आपको नींद में शेड्यूल सबसे होते हैं, पता है ना आपको? ब्रेकफास्ट करो और तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स हाउ टू कॉम्बैट दीज प्रॉब्लम्स। तो इंक्लूसिव एंड जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए देयर आर सम सजेस्टिव मेजर्स। एज अ टीचर जो रोल मॉडल हम प्ले करते हैं सोसाइटी में, तो इसमें टीचर्स का, पेरेंट्स एंड सोसाइटी का बहुत मेन रोल है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सजेस्टिव मेजर्स। सो फर्स्ट वन इज जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ गर्ल्स के लिए एंड सोसाइटी में जो हमारे लीडर्स हैं उनके लिए, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। दिस इज़ अ जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। अब इसके लिए हमें पेरेंट्स को अवेयर करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक अपनी एग्जांपल देनी चाहूँगी। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी हमारे पास, तो मैं 2-3 मंथ से उसमें काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व कर रही थी। तो मैंने उनके इंचार्ज को बोला कि अगर उसके पेरेंट्स आएँ तो पीटीएम पे प्लीज़ मेरे पास भेजना। तो पीटीएम पे आए उसके फादर। तो जब मैंने उनसे ये बात शेयर की कि सर मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे इसमें ये चेंजेस लग रहे हैं, तो आप इसको, मैं सिर्फ ये एक लाइन बोली, वो खड़े हो गए और वो क्या बोले कि मैम शाम को घर जाके मैं इसकी मम्मी से आपकी बात करवाऊँगा। सो ये स्टीरियोटाइपिंग हमें हमारी सोसाइटी से निकालनी है। ऐसे प्रोग्राम्स हमें पेरेंट्स के लिए भी करने हैं, सोसाइटी के लिए भी, ताकि वो इंडिविजुअल नीड्स देखते हुए, रैदर कि उनका बच्चा मेल है या फीमेल है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो ओपनली बात कर पाए। द नेक्स्ट वन इज जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रेनिंग। यस, जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रेनिंग बेसिकली होनी चाहिए टीचर्स के लिए, कि पहले टीचर्स इन चीज़ों को लेके खुद अवेयर हो। वो खुद, अगर उनके पास पीटीएम पे फादर आया है जब मदर आई है, तो वो उनसे ओपनली बात करने के लिए पहले खुद ट्रेन दो कि अगर फादर आ गया और गर्ल की बात करनी है, जब मदर आ गई और बॉय की बात करनी है, तो इस चीज़ के लिए पहले हमें खुद सीखना है कि हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स टीचर्स के लिए मस्ट है। द नेक्स्ट वन इज अवॉइडिंग स्टीरियोटाइपिंग। यस, सबसे पहले तो हमें स्कूल में, अपने घर में और देन सोसाइटी में हमें ये अवेयरनेस लानी है कि हम स्टीरियोटाइप को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करनी है। जैसे कि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, गुड बॉय,
गुड गर्ल, ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, प्रीटी गर्ल, ब्रेव बॉय। तो इनकी जगह या तो हम बच्चे का पर्टिकुलर नेम लें या फिर हम एवरीवन, एवरीबडी, इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ करें ताकि हम अपनी क्लासरूम का एनवायरनमेंट जेंडर न्यूट्रल बना सकें। सेकंड, अगर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए कि अगर हम एक बॉय से बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग हो, और अगर एक फीमेल से बात कर रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग हो। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन को लेके ये नहीं होना चाहिए कि जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए। ये नहीं कि फीमेल के लिए कुछ, गर्ल के लिए अलग रूल और बॉय के लिए कुछ अलग रूल। हमें उनके लिए इक्वल रूल्स बनाने हैं। सपोज अगर कोई काम या कोई शरारत की लड़का लड़की ने मिलकर की तो इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि हम लड़की को तो कहें आप जाओ क्लास में और बॉयज़ के लिए कोई हार्ड पनिशमेंट्स हो। तो हमें डिसिप्लिन रूल्स भी सभी के लिए एक जैसे रखने हैं। जैसे कि मैंने ये चीज़ अब मेरी क्लास में 1-2 बार सुनी है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने, बॉय ने वॉशरूम के लिए पूछा तो नहीं जाने दिया, वही अगर लड़की ने पूछा तो सर ने, मैम ने भेज दिया। तो हमें इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे बच्चों के माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आए। द नेक्स्ट वन इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल। यस, हर वो स्कूल जो अप टू 10th है वहाँ पर 7, 8 to 10th के जो बच्चे होते हैं दे आर अंडर टीनेज के स्टूडेंट्स होते हैं और उन्हें बहुत सारी एडोलेसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हर एक स्कूल में एक एक्टिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल होना चाहिए कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो वो उन्हें पता हो कि हमें यहाँ कहाँ जाना है, और अगर उनके साथ स्कूल में ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्हें पता हो किस प्रॉब्लम में हमें सोल्यूशन के लिए कहाँ तक जाना है। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। यस, एज अ टीचर ये बहुत मेन रोल है हमारा कि हम करिकुलम या जो हम बुक्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह की हो। तो हमारी बुक्स होनी चाहिए जिसमें हमें वर्किंग वीमेंस, केयरिंग फादर या जो फादर कुकिंग कर रहे हैं, फीमेल बाहर काम पे जा रही है, इस तरह की पिक्चर्स या इस तरह की स्टोरी एग्जाम्पल्स हमें उसमें मिले। सबसे पहले बात करते हैं, ये नहीं कि मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें जो वेजिटेबल सेलर या मिल्क सेलर, इस तरह की जो भी पिक्चर्स हैं वो सारी मेल्स को रिप्रेजेंट करें। जब ईवीएस की बुक्स में जो पिक्चर्स होती हैं पायलट, इंजीनियर, टीचर्स, वो मेल को रिप्रेजेंट करें, और कुकिंग, क्लीनिंग ऐसे काम फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। हमारी जो लैंग्वेज बुक्स है उनमें ऐसी स्टोरीज नहीं होनी चाहिए जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग शो करे कि वो उसकी पत्नी थी बेचारी घर पे रहती थी, ये ऐसी कोई स्टोरीज या ऐसे चैप्टर्स नहीं होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन। यस, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा कि स्कूल ने इक्वल पार्टिसिपेशन करवाई, रेदर दे आर बॉय और दे आर गर्ल। तो इस तरह से हमें स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग इक्वल पार्टिसिपेशन के उन्हें मौके देने चाहिए। उनकी अगर ग्रुपिंग भी करनी है तो उनकी एज के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस तरह से करनी चाहिए, लेकिन जेंडर के बिहाफ पे कभी नहीं करनी कि एक साइड गर्ल्स हो जाओ, एक साइड बॉयज़ हो जाओ। द नेक्स्ट वन इज एप्रिसिएशन एंड अवार्ड्स, कि हम जो स्टूडेंट्स को एप्रिसिएशन देते हैं, जो अवार्ड्स देते हैं, तो उसमें हमें ये वर्ड्स नहीं बोलने प्रीटी गर्ल, ब्रेव बॉय, ठीक है। जो उनके लिए हमने एप्रिसिएशन, जो अवार्ड्स रखने हैं वो भी कॉमन होने चाहिए दोनों तरह के जेंडर्स के लिए। द नेक्स्ट वन इज नॉन बायस्ड सोशल मीडिया। यस, जो हमारा सोशल मीडिया है वो आज के टाइम में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है और उसका नॉन बायस्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे गोविंदा की एक मूवी है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो उस मूवी में हमें ये बहुत अच्छा मैसेज मिलता है जिसमें ये दिखाया गया कि उसकी जो वाइफ है वो वर्किंग है और जो मेल है वो खुद घर पे रह के वो सारा काम करता है, लेकिन उसको सोसाइटी बहुत लेट डाउन करती है, ठीक है। तो इस तरह की नॉन बायस्ड सोशल मीडिया होना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करे। नेक्स्ट इज एनकरेज ओपन डायलॉग। ओपन डायलॉग होना चाहिए बिटवीन टीचर एंड पेरेंट, टीचर एंड सोसाइटी या स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में। ये नहीं कि टीचर पहले खुद ही झिझक रहे कि अब मैं ये बात कैसे बोलूं, जब एक मेल और फीमेल टीचर को अपनी क्लास के किसी बच्चे की प्रॉब्लम पे डिस्कस करना है तो पहले खुद ही झिझक रही हैं कि हाय मैं सर से बात कैसे करूं या ऐसा करूं। हमारे साथ भी शायद कई बार हुआ होगा कि अगर मैं एक फीमेल टीचर हूं और मेरी क्लास में अगर कोई मेल पर्सन को, जब बॉय को कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम डेफिनेटली उसको एक मेल टीचर के पास भेजते हैं। होप सो आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो हमें ये नहीं करना, हमें पहले ओपन डायलॉग को एनकरेज करना है ताकि बच्चे भी उस चीज से अवेयर हो पाए। तो दीज आर सम सजेस्टिव मेजर्स फ्रॉम माय साइड। सो जेंडर सेंसिटिविटी इज नॉट अबाउट स्पेशल ट्रीटमेंट, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड एज एन इक्वल ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच।
तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून Respected Director Sir, Principal Ma'am, Vice Principal Sir, Deputy Director Sir and dear IASA team. मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मिस प्रियंका मैम जैसे रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद करने का मौका मिला। डियर मैम, आपका आज का सेशन बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक रहा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी टीचर्स आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अब मैं मिस प्रियंका मैम का धन्यवाद कहते हुए रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर, डिप्टी डायरेक्टर सर एंड कुलदीप मैम को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो मंच पर आए और हमारे